નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને આજે વાત કરી રહ્યા છે નેશનલ પ્રેસ ડેની. ન્યૂઝ સમાચાર, આપણી આસપાસ બનતી ઘટનાઓની વિસ્તૃત માહિતી, અને આ માહિતી આપતું ક્ષેત્ર એટલે પત્રકારત્વ. અને જ્યારે વાત પત્રકારત્વની હોય તો આઝાદી કાળથી તેનું મહત્વ આપણે હંમેશાથી જોતા આવ્યા છે. અને સાથે જ્યારે વાત પત્રકારોની પણ કરીએ ત્યારે આપણે એ જોઈ શકીએ છીએ કે આજના સમયમાં પણ સમાચારોના માધ્યમોથી તેની વિશ્વસનીયતા આપણે અકબંધ જોઈ રહ્યા છે. એ સાથે જ જ્યારે પણ વાત પ્રેસની આવે છે ત્યારે હંમેશાથી વાત સ્વતંત્રતાની પણ થાય છે, વિશ્વસનીયતાની પણ થાય છે અને પડકારોની પણ થાય છે. આજનો આ સમય ઘણો બદલાતો આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. પહેલાંના સમયની વાત કરીએ ત્યારે પત્રકારો અને પત્રકારત્વની પરિભાષા શું હતી, આજે કેટલી અલગ જોવા મળી રહી છે. 16 નવેમ્બર 1966થી ભારતીય પ્રેસ પરિષદ દ્વારા સત્તાવાર કાર્ય શરૂ કરાયું હતું અને ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી 16 નવેમ્બરે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આજનું પત્રકારત્વ કેટલું સ્વતંત્ર છે અને લોકોનો અવાજ બનવામાં આ ક્ષેત્રની ભૂમિકા અંગે સૌ કોઈનું શું માનવું છે તેના વિશે પણ આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છે. લોકશાહીનો ચોથો સ્તંભ જેને માનવામાં આવે છે, ત્યારે આજે એની સાથે જ વર્ષોથી જોડાયેલા એવા પત્રકારો સાથે આપણે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ ક્ષેત્રની સાથે જોડાયેલા રહેવું એમાં કેટલા પડકારો પણ છે, કેટલી જવાબદારીઓ પણ છે અને કેટલી ફરજ પણ છે. આ તમામ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરીશું, જેની માટે મારી સાથે જોડાયા છે દીક્ષિત સોનીજી, જે વરિષ્ઠ પત્રકાર છે, ડોક્ટર અજય તિવારી પણ દિલ્હીથી વરિષ્ઠ પત્રકાર આપણી સાથે જોડાયા છે. આ બંનેનું સ્વાગત છે. વેલકમ ટુ ડે સ્પેશિયલ. દીક્ષિતજી, સૌથી પહેલો સવાલ કરવાનો મન થાય તો ઘણા વર્ષોથી જ્યારે જે લોકો જોડાયેલા હોય ને ત્યારે એમના અનુભવો પરથી જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે આ ક્ષેત્રમાં, આ ફિલ્ડમાં કેટલું પરિવર્તન આપ જોઈ રહ્યા છો. આજે આપણે નેશનલ પ્રેસ ડેની ઉજવણી કરી રહ્યા છે અને શરૂઆત થઈ હતી 1966થી અને આપ પણ ઘણા વર્ષોથી આ ક્ષેત્રની સાથે જોડાયેલા છો. ત્યારે આપ પર્સનલી પોતાના અનુભવો પરથી કેટલા પરિવર્તન જોઈ રહ્યા છો આ ફિલ્ડમાં? વેલ પિનલ, બહુ મહત્વનો સવાલ છે તમારો આ, અને આજનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વનો દિવસ કહી શકાય. અને સતત પરિવર્તનશીલ રહ્યું છે પત્રકારત્વ. વાત કરવામાં આવે પ્રિન્ટ મીડિયાની, ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાની, હવે ડિજિટલ ક્ષેત્રનો જે આરંભ થયો છે, આ તમામ માધ્યમોને અથવા તો આ માધ્યમોના અલગ અલગ સ્વરૂપોને ખૂબ જ નજીકથી જોયા છે છેલ્લા 25 વર્ષના ગાળામાં. નિશ્ચિત રીતે હું એવું કહી શકીશ કે છેલ્લા 25 વર્ષના સમયગાળામાં, એટલે કે જયારે 1996માં જયારે મેં પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી, એ વખતે પત્રકાર તરીકેનું એક જે રિસ્પેક્ટ લેવલ હતું, મને એવું લાગે છે, એકદમ ઓપનલી હું વાત કરતો હોઉં છું, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ વાત કરતો હોઉં છું, એ ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રોફેશન માટેનું એક જે સન્માનનું એક લેવલ હતું, એ ક્યાંક થોડુંક અમુક ઘટનાઓના કારણે નીચે ચોક્કસ આવ્યું છે. પણ હા, સમાજને આજે પણ એક પત્રકારની અને સાચા પત્રકારત્વની એટલી જ જરૂર છે. અને એટલા માટે જ આજે લોકો એડમિનિસ્ટ્રેશનની સાથે સાથે જો સૌથી વધારે વિશ્વાસ કરતા હોય તો પત્રકારો પર વિશ્વાસ કરી રહ્યા છે. પિનલ, ઘણા એવા દાખલા છે, ઘણા એવા ઉદાહરણ છે, ઘણી એવી ઘટનાઓ લાઈફમાં બની છે કે જેમાં લોકો કોઈ પણ એમની સમસ્યા માટે અપ્રોચ પત્રકારોનો કે મીડિયાની સંસ્થાઓનો કરતા હોય એવું હંમેશા જોવા મળ્યું છે. અને આવા સમયે અમે હંમેશા કહેતા હોઈએ છીએ કે પહેલા તમે એડમિનિસ્ટ્રેશનનો અપ્રોચ કરો અને પછી અમારી પાસે આવો. એટલે કે પત્રકારત્વની, સાચા પત્રકારોની અને એક સમાજને આજે એટલી તાતી જરૂર છે. લોકોનો અવાજ બનવાની જે વાત છે, એ લોકોનો અવાજ આજે પત્રકાર બની રહ્યા છે. અને એટલા માટે જ આજે પણ પત્રકારો સાથે લોકો એક આત્મીયતા અનુભવે છે. જી દીક્ષિતજી, પણ છતાં પણ પત્રકારો પર અને પત્રકાર ક્ષેત્રની સાથે જોડાયેલા લોકો પર ઘણી વખત ઉઠતા સવાલો, અને આપણે પણ વાત કરી કે ઘણા સમયથી આપણે એ પણ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ વિશ્વાસ ડગમગાતો પણ આપણને જોવા મળ્યો છે. એનું કારણ ઘણા લોકો કહેતા હોય કે પોલિટિક્સની વાત આવે, રાજકારણની વાત આવે તો ક્યાંક અમુક રાજકીય ક્ષેત્રની સાથે જોડાયેલા લોકોની સાથે તરફેણની વાત હોય, અમુક લોકોની તરફેણની વાત હોય. આવા ઉઠતા સવાલોના જવાબ ક્યાંક આપણે નથી આપી શકતા ઘણી વખત, એવું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હું એવું માનું છું કે આ બધા જવાબો આપણે સમયાંતરે ચોક્કસ પત્રકાર તરીકે અને મીડિયા સંસ્થા તરીકે આપેલા જ છે. અને કોઈ પણ એક સંનિષ્ઠ પત્રકાર જે છે એ હંમેશા એક બેલેન્સ વેમાં કામ કરતો હોય છે. એ વાત અલગ છે કે લોકો એને અલગ અલગ રીતે જોતા હોય છે, અલગ અલગ રીતે પોતાના દ્રષ્ટિકોણ મુજબ મૂલવતા હોય છે. પણ એક પત્રકાર તરીકે તમે જે પોઝિશન પર છો અને એ પોઝિશન પર એક બેલેન્સ વસ્તુ પીરસવાનો તમે હંમેશા પ્રયત્ન કરતા હો છો. આમ જોવા જઈએ તો ઘણી બધી મીડિયા સંસ્થાઓ એવી છે, હું નામ નહીં લઉં, પણ
એવું કહેવાતું હોય છે કે ભાઈ ફલાણી મીડિયા સંસ્થા છે તો એક પ્રકારની વિચારધારા લેફ્ટિઝમને વધારે પ્રમોટ કરે છે, બીજી એક મીડિયા સંસ્થા છે એ રાઇટિઝમને વધારે પ્રમોટ કરે છે. તો ફાઇન, આ બધા પર્સપેક્ટિવ્સ છે, આ બધા પરસેપ્શન્સ છે, અને લોકો એ પરસેપ્શન પ્રમાણે મૂલવતા હોય છે આપણને, આપણા કામને. બટ ફાઇન, પત્રકારનું કામ છે ઘટનાને રિપોર્ટ કરવાનું. યુ આર હિયર ટુ રિપોર્ટ ધ ફેક્ટ્સ, યુ આર નોટ હિયર ટુ ક્રિએટ એની કાઇન્ડ ઓફ અ પરસેપ્શન. આ એક સિદ્ધાંતને ધ્યાનમાં રાખીને જો પત્રકારત્વ કરવામાં આવે તો મને લાગે છે પરસેપ્શન છોડી દો ને લોકો પર. આપણું કામ અહીંયા આગળ છે ફેક્ટ રિપોર્ટ કરવાનું, આપણે ફેક્ટ રિપોર્ટ કરીને આગળ વધીએ. અને મને લાગે છે કે જે સાચા પત્રકારો છે આજે પણ એ કરી રહ્યા છે. જી બિલકુલ, દીક્ષિતજી આપને વધુ બે સવાલ કરીશ, પરંતુ પહેલા અજયજીને એક આપણી સાથે જોડાયેલા છે. જી અજયજી, જ્યારે વાત પત્રકારત્વની હોય તો એક એવું ક્ષેત્ર છે કે જ્યાં 24/7 સક્રિય સતર્ક રહેતા હોય છે લોકો. જ્યારે દેશ કે રાજ્યમાં કોઈ પણ અઘટિત ઘટના બને, કુદરતી હોનારત હોય કે પછી કોઈ પણ રમખાણ હોય, આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ જ્યારે તે સ્પોટ પરથી એવા બધા જ લોકો દૂર ભાગતા હોય, એવા સમયમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ક્યાંક આ પત્રકારત્વ ફિલ્ડની સાથે જે જોડાયેલા લોકો છે તે લોકો ત્યાં જઈને માહિતી ઉજાગર કરતા હોય છે. શું કહેશો આવા લોકો માટે સૌથી પહેલા तो? पैनल जी, मैंने आपकी बात को समझा, क्योंकि मैं गुजराती पूरी तरह बोल नहीं पाता हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारत देश की 140 करोड़ जनता को आने वाली छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। लेकिन जो आज ये आपने चर्चा छेड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। आप याद करिए, जब हम छोटे थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और वो पत्रकारिता जिसकी कलम में एक ताकत हुआ करती थी, जिस ताकत की वजह से देश के लोग, अभी दीक्षित जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, सम्मान कम हो गया है। वो पत्रकार जिसकी कलम की धार से प्रभात, आर्य और आज अखबार, ये दैनिक जागरण तो बहुत बाद में आया और बहुत से अखबार बाद में, अभी कई अखबार ऐसे चल रहे हैं। लोग सवेरे सवेरे अखबार पढ़ने की आदत लगाते थे। आज मीडिया टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इसी टेक्नोलॉजी की वजह से आम जनता तक बहुत जल्दी लोग मोबाइल के माध्यम से पहुंच तो जा रहे हैं, पर क्या सच है, क्या झूठ है, इसका आंकलन करना आज की डेट में बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ऐसी मुश्किल परिस्थिति में आप ये समझिए कि उन पत्रकारों की ताकत जो कल थी वो आज भी है, लेकिन बहुत से पत्रकारों की हत्याएं हो जा रही हैं। बहुत से पत्रकारों का जो वजन होना चाहिए वो वजन नहीं मिल पा रहा है। बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जो गोदिया मीडिया के रूप में जाने लगे हैं। तो ऐसे में जनता कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं विश्वास जो है उनका खोता जा रहा है कि पत्रकार सही है भी या नहीं है। और जनता का विश्वास जीतना इस देश में बहुत जरूरी है। और पत्रकार तो वो ताकत है कि बहुत जल्द जनता का विश्वास जीत सकता है, क्योंकि पत्रकार निर्भय होकर के जनता के बीच में, नेताओं के बीच में और पुलिस प्रशासन के बीच में जा करके उनकी आवाज बनता है। और ये पत्रकारिता जो आवाज बनती है वही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ी है, लेकिन थोड़ा विश्वसनीयता भी कम हुई है। और इस विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए पत्रकारों को थोड़ा सा अपना सिस्टम बदलना होगा। जी जी बिल्कुल। अजय जी, यहाँ पर अगर अभी हम बात करें, जैसा कि हम पत्रकारित्व की भी अलग अलग परिभाषा, अलग अलग क्षेत्र देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज के समय पर, पहले जो हम इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म देख रहे थे वो कहीं देखने नहीं मिल रहा है। हम देखते हैं कि कोई भी एक न्यूज आती है, या हम सभी इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो हमें हर एक न्यूज चैनल पे देखने मिलती है, हर एक न्यूज़पेपर में देखने मिलती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कितना होता है, कहीं ना कहीं वो कम होता हुआ देखने मिल रहा है। जी बिल्कुल पीनल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो सिस्टम अब बदल रहा है, लेकिन एक चीज है, उस इन्वेस्टिगेशन में हम जो कहते थे, हम जो लिखते थे, जनता उस पर विश्वास करती थी, वो जमाना हुआ करता था। लेकिन आज हमारे पास प्रूफ होता है, हम वीडियो कैप्चर करते हैं, उसके बाद भी हमें विश्वास नहीं होता कि ये वीडियो सच है या नहीं है। ये बड़ा, देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पत्रकारिता जगत में पत्रकारिता का वजन बहुत अहम भूमिका निभाने वाला होता है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो,
चाहे वो किसी भी वर्ग के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो। पत्रकार के बारे में फिर से कहना चाहता हूं, पत्रकारिता जो हम लोग काम करते हैं या आप काम कर रहे हैं, समाज का कोई भी पत्रकार डिजिटल मीडिया से भी काम कर रहा है, वो बहुत बड़ी ताकत है। इस देश की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी अगर है तो वो पत्रकार जगत है, जो एक दूसरे की कनेक्टिविटी को, एक दूसरे की बातों को जनता के बीच पहुंचाने का काम करता है। आप सोचिए कि वो आज कहीं ना कहीं विश्वसनीयता की वजह से खतरे में पड़ी हुई है। जो लोगों के बीच में जो चर्चा जा रही है, जैसे गोदी मीडिया की चर्चा, जैसे पत्रकारिता जगत में लोग किसी की भी वीडियो बना करके उसको हाईलाइट कराने का प्रयास करते हैं, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जनता के बीच से गलत हो रहा है। इसलिए जनता अखबार पढ़ना तो जनता ने छोड़ ही दिया है। आई थिंक मेरे हिसाब से आज की डेट में अखबार, भारत देश के 140 करोड़ जनता में मात्र 5% लोग ही अखबार पढ़ा करते हैं। और अब कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वीडियो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी सिस्टम है, जो आज हम आप डिबेट कर रहे हैं वो सिस्टम है, कहीं वो सिस्टम भी जनता के बीच से ना छिन जाए, इस बात का डर हम पत्रकारों को लगा हुआ है। और हम पत्रकारों को साथ एक और है, आप देखिए भारत देश के पत्रकारों को आज सरकार भी बहुत अच्छी तरह से वजन नहीं दे रही। आप बताइए टोल टैक्स पे किस प्रकार का टोल माफ हो गया है। आप बताइए पत्रकारों के लिए जो जोखिम उठा करके, मतलब बॉर्डर पे जाकर के, जो विदेशों में जाकर के, जो क्रिमिनल्स के बीच में जोखिम उठा करके जाते हैं, उनके साथ क्या भारत सरकार सुरक्षा कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी इस बात को सोचना होगा कि पत्रकारों को हम कैसे सुरक्षा दें और कैसे उनकी विश्वसनीयता को बरकरार रखा जाए, ताकि नेशनल चैनल पर जिस तरह की आज चर्चा आती है, एक पत्रकार किसी बीजेपी के समर्थन में बोलता रहता है तो बोलता ही रहता है, और वो ये नहीं समझता कि जो बोल रहा है जनता समझ रही है, और एक पत्रकार जो कांग्रेस के बारे में बोलता है वो बोलता रहता है। मतलब कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें आपको समझना होगा। और हम तो कहते हैं कि आज पत्रकारिता जो है वो, उसकी कम्युनिकेशन की जो पढ़ाई है वो भी बहुत महंगी होती जा रही है। आप देखिए कितना पढ़ लिखने के बाद हम जनता के बीच के जाकर के विश्वास जीतने का काम करते हैं। पिना जी, आप ही कई चैनलों पर आपने हमारे साथ कई बार डिबेट किया है, उस डिबेट में जो आपने क्वेश्चन पूछा है, बड़े सटीक क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन पूछना ही आपका मकसद होता है समाज के बीच में हमारी बातों को रखना, ताकि जनता अवेयरनेस प्राप्त कर सके। जनता अवेयरनेस प्राप्त नहीं कर पाती है, इसलिए कुछ भी बोल देती है। कौन सा आदमी गलत है, किस राज्य में क्या गलत हो रहा है, कौन सा आदमी किस तरह से राज्य के विकास में योगदान करता है, यह पत्रकारिता जगत का काम है, और ये हमेशा होते रहेगा। लेकिन अजय जी, कहीं ना कहीं हमें ये भी तो मानना पड़ेगा कि आज इतने सारे न्यूज़पेपर्स हैं, इतनी सारी न्यूज चैनल्स हैं, कि कहीं ना कहीं इस दौड़ में आगे निकलने की जो रेस लगी है उसमें हम कहीं ना कहीं विश्वसनीयता खो देते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो आगे बढ़ने की होड़ जो देखने मिल रही है, उस वजह से कहीं हम बोलते हैं ना कि क्वालिटी और क्वांटिटी, इसमें कहीं डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कई बार। नहीं, ये बात पिनल जी आपने बहुत अच्छी कही। देखिए आज क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड का अंतर तो आपको मानना ही पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब डिजिटल मीडिया को इतना सस्ता समझ रखा है इन्होंने, कि जिस तरह से वो चर्चा फैलाने का काम करते हैं, जिस तरह से वो अपने वीडियोस को दिखाते हैं, बस टीआरपी बनाना है, कैसे नंबर्स बढ़ाने हैं, कैसे व्यूअर्स बढ़ाने हैं, बस यही सोच रह गई है। कैसे व्यूअर्स बढ़ाने हैं ये सोच हटाना पड़ेगा, कैसे टीआरपी बढ़ानी है ये सोच हटाना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा काम किया तो निश्चित तौर से आपको टीआरपी बढ़ाने के लिए जनता, 140 करोड़ जनता अगर 10% भी हाथ रख देती है तो बहुत अच्छा हो जाता है। हमें आपको यही सोचना होगा कि हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे कि जनता के समर्थन में हमारी बात जाए, जनमानस को समझ में आए। ये जनमानस ही है जो लोगों को मिनिस्टर, नेता, मंत्री और अपने सिरों पर चढ़ाती है। तो ये जनमानस ही है जो आपके टीआरपी को बढ़ाएगी। हाँ, बिल्कुल सच कहा पिनल जी आपने। आज इतना ज्यादा यूम हो गया है टेक्नोलॉजी का, कि उस टेक्नोलॉजी का जो फायदा है वो सही दिशा में अगर लेना होता है तो वो बहुत जरूरी है। और खुद से भी जो है सेल्फ मोटिवेशन भी होता है, कि आदमी को सेल्फ भी मोटिवेशन करना चाहिए, सच्चाई से किस तरह से काम करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। हमेशा यही नहीं सोचना है कि धन कमाने के लिए टीआरपी बढ़ा लो, व्यूवर बढ़ा लो और लोगों से बताओ कि मेरे आज 60,000 व्यूवर हो गए। अरे भाई, आपके 60,000 व्यूवर हो गए हैं, वो कैसे हुए हैं, वो एक सोचने वाली बात है, इस पर ध्यान देना होगा। जी जी जी, यहाँ पर लेकिन जब बात पत्रकारों की होना, तब हम ये देखते हैं कि जैसा कि कई बार मैंने पहले भी अभी बात की कि कई विषम परिस्थितियों में उन्हें अपने घर वालों के बारे में भी न सोचकर, खुद के जान की परवाह किए बिना भी लोगों तक सही माहिती पहुंचानी होती है। उनकी इन
डिफिकल्टीज के बारे में आपका क्या मानना है? काफी सारे चैलेंजेस हम पहले भी फेस कर रहे थे और अभी भी फेस करते हैं। कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस का कोई उपाय भी नहीं है। जब इस फील्ड के साथ जुड़ना है तो इस सच्चाई के साथ ही जुड़ना है कि ये जो चैलेंजेस है वो तो फेस करने ही रहेंगे। क्या कहेंगे इस फील्ड के चैलेंजेस के बारे में? विनय जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पत्रकारिता जगत के प्रत्येक व्यक्ति को सल्यूट करना चाहता हूँ। सल्यूट भी करना चाहता हूँ और अपील भी करना चाहता हूँ। सल्यूट इसलिए करना चाहता हूं कि उनके में वाकई जो वो जिगर पैदा करते हैं, जो वो जोखिम उठा करके जाते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते। छोटे से छोटा पत्रकार, बड़े से बड़ा पत्रकार भी अपनी बात को रखना, यानी सच बात को रखने के लिए प्रयास करता है। यही बहुत बड़ी बात है। वो उसके ऊपर कितनी विपत्तियां आती, कौन सा व्यक्ति उस पर खिलाफ चला जाता है। आपने देखा होगा बहुत से पत्रकारों की, बिहार में भी 2 पत्रकारों की हत्या कर, बहुत से पत्रकारों की हत्या तक कर दी जाती है, उनके परिवारों का अपहरण तक कर लिया जाता है। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूं कि ये पत्रकार जो निर्भीकता से काम करते हैं, उसके लिए सरकार क्या करना चाहती है? क्यों नहीं ऐसा सिस्टम बनाती है सरकार की उसका एक ऐसा रजिस्ट्रेशन हो जिसमें पत्रकारों को सुविधा मिले। और दूसरी चीज, हमारे बीच के कुछ पत्रकार भाई ऐसा काम कर जाते हैं जिससे कि जो मिलना चाहिए सरकार से वो नहीं मिल पा रहा है। अपनी टीआरपी और वीवर के चक्कर में ही वो एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है। तो हम पत्रकारिता जगत से भी अपील करेंगे कि आज हम जनता का विश्वास खोने के बजाय पाने का प्राप्त करें। और निश्चित तौर से पत्रकार तो वह ताकत है कि किसी भी व्यक्ति के अगर गलत काम को उठा, देखिए आज पत्रकारिता की वजह से ही पुलिस प्रशासन जागती है, आज पत्रकारिता की वजह से ही शासन जाग रहा है, आज पत्रकारिता वजह से ही टीआरपी बढ़ाने के लिए आप टेलीविजन पर मोदी के भाषण को किस तरह से सुना जाता है। क्या मोदी जी गली गली जी छोड़ी जाता है, या कोई लीडर या कोई व्यक्तित्व गली गली छोड़ी जाता है? ये माध्यम है, चैनल का सिस्टम, ये पत्रकारिता का सिस्टम, ये डिजिटल सिस्टम, ये माध्यम है जिस माध्यम को हमें सही ढंग से दिखाना है और सही क्वेश्चन पूछ करके और सही सवाल का जवाब हमें उस व्यक्ति से लेना है, जिससे कि जनमानस को सही दिशा की तरफ रास्ता मिल सके। जी बिल्कुल अजय जी। आज का जो पत्रकारित्व है उसकी स्वतंत्रता को आप कहाँ देख रहे हैं? कहीं ना कहीं आज ऐसे काफी लोग और ऐसे काफी संस्थाएं हैं जो पत्रकारित्व की स्वतंत्रता पर तराप मारती हुई देखने मिल रही हैं। देखिए, ये बड़ा ही टिपिकल सवाल पूछा है आपने। आज की पत्रकारिता का जो आपने कहा है कि स्वतंत्रता, किसे स्वतंत्रता दी जाए? उसे जो गोदी मीडिया कहलाने लगी। अब गोदी मीडिया कौन है ये जनता कह सकती है, हम क्या कह सकते हैं? और उसे जो सिर्फ एक तरफा बात करती है। इसलिए निश्चित तौर से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता में भी इस बात का ध्यान रखना होगा और ये हम ही लोगों को ध्यान देना है कि हम स्पष्ट बात करें, सच बात करें। और सच से पत्रकार कभी नहीं डरता है, निर्भक रहता है, निर्भीक रहता है। तो वो व्यक्ति जो है अपनी विश्वसनीयता को पाने के लिए और स्वतंत्रता को पाने के लिए भारत सरकार से अपील भी करेगा कि साहब हम काम कर रहे हैं, इस देश के लिए काम कर रहे हैं और जनता तक आपकी आवाज को उठाते हैं और जनता के दुख सुख को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमारी जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को भंग करने वाले, हत्या करने वाले गुंडे, भ्रष्टाचारी, इन पर थोड़ा अंकुश लगाने के लिए सरकार का नियम बनना चाहिए। जी अजय जी, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस फील्ड के साथ बरसों से जुड़े लोग जो काफी सारा ये कह सकते हैं कि स्टडी करके इस फील्ड के साथ जुड़ के पढ़ाई करके क्वालिफिकेशन लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद इस फील्ड के साथ जुड़े। लेकिन अभी हम एक नया ही जो क्षेत्र देख रहे हैं सोशल मीडिया का, कि जहां पर हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के पत्रकार बाहर आए हैं। कोई भी ऐसी न्यूज, कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट अगर कोई भी घटना बनती है तो हमें कई बार सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता कितनी होती है? सोशल मीडिया का जो ये पत्रकारित्व अभी उभर के आया है, उसके बारे में आपका क्या मानना? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि जो आज जो डिजिटल सिस्टम में जो सोशल मीडिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे जो सिस्टम बना करके लोग काम करना चाहते हैं, अपने व्यूअर बढ़ाना चाहते हैं, इसकी विश्वसनीयता की जांच के लिए देखिए हम सब कहीं ना कहीं सत्यता जानना चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसी चर्चाएं बना करके जो काम कर रहे हैं, और वो लेकिन बात आज ये नहीं है तो कि पब्लिक उनको व्यूअर मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ये भी कंपटीशन में आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई रेगुलरिटी नहीं है, कोई ऑथेंटिकेशन वाली न्यूज नहीं है, और फिर भी लोग आगे आ रहे हैं। और कई बार यहाँ पर फेक न्यूज की बात की जाए तो
कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि लोग फेक न्यूज से लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है। नहीं, वो वही कह रहा हूँ कि उस वही जो है हमारे विश्वसनीयता को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और अपने व्यूवर को बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स को बढ़ाने के लिए जिस तरह का वो अब लिखते कुछ और है, हेडिंग दिखता कुछ और है, और उसमें मसाला मिला करके जिस तरह से वो तैयारी की जाती है, आपने तो देखा होगा, हमने भी देखा है, और बहुत से वीडियोस ऐसे देखने के बाद मन को बड़ा फील होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे जनता भ्रमित होती है और सच्चे अखबारों की, सच्चे पत्रकारों की आवाज जो है वहाँ कमजोर होती है, जो उन पर भी शक किया जाता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करने का प्रयास करती है, तो ऐसी मछलियों से मेरा अपील है कि वो थोड़ा अपनी टीआरपी को ना बढ़ाएं और थोड़ा व्यूवर को ना बढ़ाएं। ऐसे ऐसे माहौल में वो अपने व्यूवर और टीआरपी बढ़ाना ही है तो एक सच्ची दिशा में बढ़ाने का काम करें। और ये जो टेक्नोलॉजी मिली है, जिस टेक्नोलॉजी से आप काम कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी एक दिन जब जनता जान जाएगी तो आपके वीडियो को देखना भी पसंद नहीं करेगी। जी, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी से न्यूज जो है लोगों तक पहुंचती है। कहीं ना कहीं ये भी है कि लोग सोशल मीडिया से आजकल ज्यादा जुड़े हैं तो वो ज्यादा अपडेट भी रहते हैं। तो पॉजिटिव फैक्टर्स भी उसके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वसनीयता और इसके साथ जो इसके ऊपर एक रेगुलरिटी होनी चाहिए वो नहीं देखने मिल रही है। और इसके अलावा अगर अजय जी आज की यूथ जनरेशन के बारे में बात की जाए जो अभी पत्रकारित्व फील्ड में है, तो उससे आपको क्या चेंजेस देखने मिल रहा है? कहीं ना ये जो जनरेशन है उनके अगर अच्छे पॉइंट ऑफ फैक्टर्स की बात की जाए, प्लस पॉइंट्स की बात की जाए, तो आप क्या देख सकते हैं? आज की जनरेशन इस फील्ड को किस तरह से देख रही है? एज अ प्रोफेशन इसे कितना पसंद किया जा रहा है? और इसी के साथ जब यूथ जनरेशन इस फील्ड में आ रही है तब उनके सामने हम चैलेंजेस भी क्या देख रहे हैं? देखिए पिनल जी, आज का जो न्यू जनरेशन है, आज के जो युवा पीढ़ी है, वो आज फेक न्यूज की तरफ ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि वो विकास चाहती है, वो अपनी शिक्षा को चाहता है, वो अपने रोजगार को चाहता है और अपने आप को बढ़ाना चाहता है, वो बिजनेस व्यापार करना चाहता है। तो आज जो बहुत सी न्यूज वो देखता है लेकिन उसको इग्नोर करता है। आज की जो युवा पीढ़ी है ऐसे न्यूज को बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहती है और कभी इसकी चर्चा भी नहीं करता। आप देखें, अगर ऐसा नहीं होता तो भारत देश में ऐसे गलत गलत वीडियोस और न्यूज आते हैं, फिर भी युवा पीढ़ी हमारे भारत देश की इतनी समझदार है, इतनी बढ़िया है कि वो सिर्फ अपने स्टडी, अपने रोजगार और अपने विकास, अपने परिवार के विकास में लगा लगा हुआ है। और जो नए युवा पीढ़ी इस टेक्नोलॉजी में आया है, जिसे आईआईटी से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो कहीं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप देखिए इंफोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आप बहुत से लोगों को अच्छा टेक्नोलॉजी दे रही है, लेकिन जो इस फील्ड में, पत्रकारिता फील्ड में आए हैं, वो कुछ कहीं ना कहीं टीआरपी और कहीं ना कहीं व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में गलत रिपोर्ट को लगाने का काम कर रही हैं। तो वो हमारे लिए विश्वसनीयता कम कर रहे हैं और इसको हमें समझना होगा और इनको हमें बताना होगा कि ये जो युवा पीढ़ी है ये केवल धन कमाने के लिए इस लाइन में आकर आप ऐसा काम ना करें जिससे कि 1965 का अखबार जो आज तक चल रहा है, भले ही कम परसेंटेज हो गया हो, लेकिन वो जमाना अलग था जब केवल अखबार पढ़ने के लिए सुबेरे जो है चाय और अखबार का सिस्टम हुआ करता था। आज आपके मोबाइल का सिस्टम हो गया है, तो वो मोबाइल भी लोग देखना, जब न्यूज का मैटर आता है तो मोबाइल नहीं देखते, तो उसको आपको समझना होगा। और युवा पीढ़ी ने जो अभी आईआईटी के जो छात्र हैं या मेडिकल के छात्र हैं या मतलब इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उन छात्रों को देखिए, वो छात्र भी आज इस फील्ड में आने को तैयार हैं, जो इंजीनियरिंग करने के बाद भी इस पत्रकारिता लाइन में आने को काफी तैयार सारी हैं। अलग डिग्री लेकर भी लोग इस फील्ड में आने के लिए तैयार देखने मिलते हैं। जी आज जी इस जी। में येलो जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट, ये जो अभी आज प्रेस फील्ड में हमें देखने मिल रहा है वो कितना अयोग्य है? नहीं, वही इसीलिए आना चाहते हैं कि आज एडवर्टाइजमेंट देखिए, अगर 1 करोड़ किसी के एडवर्टाइजमेंट करना है तो आज लोग हमारे इस डिजिटल मीडिया पर आते हैं और अपना एक ऐड लगवाते हैं, बहुत जल्दी उसके ऐड की चर्चा होती है, वो सस्ता भी जी, हो गया सोशल है। मीडिया में ही नहीं, मैं ओवरऑल जर्नलिज्म में येलो जर्नलिज्म के बारे में भी पूछना चाहूंगी। येलो और हम सारी न्यूज एजेंसीज की भी बात करें, न्यूज़पेपर्स की भी बात करें, तो इन सभी में आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं ये तो कहूंगा कि अभी ऐड से ही इनके सारे खर्चे चलते हैं, क्योंकि ऐड, सरकारी ऐड भी मिलते हैं, प्राइवेट ऐड भी मिलते हैं, और हर व्यापारी, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा जो ऐड के पैसे भी लेकिन कहीं ना अच्छे कहीं इसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल।
जी 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 अजय जी, अंत में क्या कहेंगे? आज नेशनल प्रेस डे है, तो जैसा कि अभी तक बरसों से जो प्रेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं वो हमेशा से लोगों तक सत्य घटनाओं को पहुंचाते हैं, परिस्थितियों का सामना करके भी सारी माहिती पहुंचाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? बिना जी, मैं तो यही कहूंगा कि हर व्यक्ति को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जातिवाद, प्रांतवाद और भेदभाव, धर्मवाद से ऊपर उठ करके जो भी पत्रकारिता जगत में है उसको अपना वजन समझना होगा, अपनी कलम की ताकत समझनी होगी। वह इस भारत देश की तीसरा स्तंभ, बल्कि दूसरा स्तंभ, भारत देश का दूसरा स्तंभ पत्रकार। उसके लिए इतना ही कहूंगा कि जातवाद का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद जी का भेदभाव बेकार है। हम सब जी भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। और दूसरा कि ए कलम, ये जो कलम है, ए कलम जी रुक के चल, ए कलम रुक के चल, आगे अदब का मुकाम है। और तेरी इस नोक के नीचे इस भारत देश के दुख सुख का नाम है, इस दुख सुख जी का नाम। बिल्कुल अजय जी, आपको भी आज के दिन की खूब खूब शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तो समय थैंक यू यह वेरी मच, समाप्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। તો આજે નેશનલ પ્રેસ ડેના દિવસે પ્રેસ એટલે કે રાષ્ટ્રીય પત્રકારત્વ દિવસની આજે આપણે વાત કરી છે કે કઈ રીતે તમામ જે ઘટનાઓ છે તેની સત્યતા તપાસીને સચોટતા મેળવીને આપના સુધી આ સમાચારો પહોંચે છે, કયા પડકારો છે અને સાથે જ વ્યવસ્થાના ઉચ્ચ ધોરણો કેવી રીતે જાળવવામાં આવે છે આ ક્ષેત્રમાં તેના વિશે વાત કરી છે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં. અત્યારે બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.